नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSPH डिजिटल क्लासरूम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम अपने प्रीवियस सेशन का एक टॉपिक क्वेंक ट्यूब एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यूएशन में लेंगे। उसके साथ साथ एक नया फेनोमेना साउंड का देखेंगे जिसका नाम है बीट्स, एंड विल बी डूइंग analytical treatment to beat production. So let me begin with a quench tube experiment, or it is also pronounced as a quench tubes experiment. Now, so before we enter into the experiment, first let us understand the intensity in interference. Interference हम previous lecture में थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, बराबर। थोड़ा सा हम मैथमेटिकली इसको डेप्थ में लेके जाते हैं। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो, व्हेन द टू वेव्स अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos phi. Now squaring both the sides will give us this result. अब हम इतना तो जानते हैं कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। I is directly proportional to a square. So AR square can be replaced by IR. A1 square can be replaced by I1. This will be I2 प्लस 2। A1 की जगह पे रूट I1, A2 की जगह पे रूट I2 cos phi. So we are getting the result IR is equals to I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2 cos phi. The meaning of the terms are IR is the intensity of resultant wave. I1 and I2 be the intensity of first and second wave, and phi is the phase difference between the two waves. अब इंटरफेरेंस का एक और डेफिनेशन बना लेते हैं यहां से। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन टू और मोर वेव्स अराइव एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। सो इफ यू नोटिस, जब दो वेव एक पॉइंट पे अराइव करते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 नहीं होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos phi. So resultant intensity also depends on the phi, where phi is a phase difference between the two waves. All right, now अब दो स्पेशल केस ये इक्वेशन से अपन बना लेते हैं। तो पहला स्पेशल केस है, व्हाट इफ phi is equals to 0. Phi is a phase difference between the two waves. दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस का 0 होना मतलब वेव्स आर इन फेज. So if I substitute phi 0 here, cos 0 becomes 1. So I'll be getting IR is equals to I1 plus I2 plus 2 under root of I1 I2. This is nothing but under root of I1 plus under root of I2 the whole square, and this represents the maximum intensity of resultant wave, root I1 plus root I2 the whole square. Now second special case, what if phi is equals to pi? Pi मतलब 180 डिग्री। phi का pi के इक्वल होना मतलब टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज। तो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं समझाऊं तो इन फेज वर्ड का मतलब है crest of one wave coincides with a crest of second wave, and out of phase word का मतलब है crest of one wave coincides with a trough of second wave. So that is the meaning of in phase and out of phase, right?
So if I substitute phi की जगह पे pi, cos pi will be -1. So we'll be getting IR is equals to I1 plus I2 minus 2 under root of I1 I2, and this will give us the minimum intensity is equals to root I1 minus root I2 the whole square. Now, so if I take the ratio of Imax and Imean, so the ratio looks like Imax upon Imean is equals to root I1 plus root I2 upon root I1 minus root I2 the whole square. That can also be written as A1 plus A2 upon A1 minus A2 the whole square. Right? अब ये जो इक्वेशन बनी है इंटेंसिटी की पहली वाली इक्वेशन, इसमें अगर मैं रूट I2 से डिवाइड करूं तो इक्वेशन ऐसा भी लिख सकते हैं Imax अपॉन Imean इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ I1 बाई I2 माइनस 1 द होल स्क्वायर. बराबर. अब अगर दोनों वेव्स, जो दो वेव्स आ रहे हैं, दोनों अगर आइडेंटिकल रहेंगे तो दोनों वेव का इंटेंसिटी भी सेम रहेगा. तो ये बन जाएगा आपका रूट I1 प्लस रूट I1 विच इज नथिंग बट 2 रूट I1 द होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 4I1. सो Imax will be 4 times the intensity of individual wave. और यहां पर अगर I1 और I2 इक्वल रहेंगे तो दोनों सबट्रैक्ट होकर के 0 बन जाएंगे. सो आई विल बी गेटिंग Imean इज इक्वल्स टू 0 like this. All right, now so that is the final result we are having. अब इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम कब बन रहा है भाई? जब फेज डिफरेंस 0 और पाई का रह रहा है तब. अब बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशनशिप बनाया था वेव्स के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में. और रिलेशन कुछ ऐसा आया था, फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा. फाई इज अ फेज डिफरेंस, एक्स इज अ पाथ डिफरेंस. अब हमने दो जो स्पेशल केस देखे, अगर सिर्फ उसकी मैं बात करूं तो पहला स्पेशल केस था फेज डिफरेंस 0. इफ द फेज डिफरेंस इज 0 डेफिनेटली पाथ डिफरेंस हैज टू बी 0. राइट? तब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी. दूसरा स्पेशल केस हमने जो देखा उसमें था फेज डिफरेंस फाई is equals to pi. You substitute phi की जगह पर pi here. So pi and a pi will be getting cancelled. x यहीं पे रहने दीजिए. लैम्बडा इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2 यहां पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा. So I will be getting x is equals to लैम्बडा by 2. यहां से एक चीज अगर आपको समझ में आई हो, when path difference is 0, we'll get a maximum intensity. When a path difference is lambda by 2, we'll be getting a minimum intensity. बराबर? अब ये तो हो गई मैथमेटिकल बात. मैथ्स की मदद से समझ में आ गया कि भाई हाँ ऐसा होएगा. राइट? अब अपन कर लेते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात. राइट? अब थोड़ा सा हम देखेंगे, सुनेंगे, तभी तो फिजिक्स में मजा आएगा. और देखेंगे और सुनेंगे तभी तो फिजिक्स को हम बेटर विजुअलाइज कर पाएंगे. राइट? सो जस्ट टू मेक यू विजुअलाइज, यहां पर मैंने कुछ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है, which is also called as a Quench tubes experiment or a Quench tubes experiment. So this is having a U tube, a U-shaped tube, which is having the 2 openings, right? The opening is here,
एंड द ओपनिंग इज हियर एज वेल। पहले ओपनिंग के यहाँ पर हम सोर्स रखने वाले हैं, सो दिस स्पीकर इज काइंड ऑफ एक्टिंग एज अ सोर्स। और ये जो दूसरा ओपनिंग है, दूसरा ओपनिंग है, वहाँ पर हम अपना ईयर रखेंगे। सो यहाँ पर विल बी हैविंग अ रिसीवर और अ लिसनर और यू कैन से ऑब्जर्वर। बराबर। नाउ सी, अब यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो अपना सोर्स है वो साउंड एमिट करेगा, वो साउंड पाइप में एंटर होएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो एक यू ट्यूब था उसके साथ एक और यू शेप्ड ट्यूब ऐसा उल्टा रखा गया है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो सोर्स एंटर होएगा वो सोर्स ये वाले रास्ते से भी ट्रैवल करता हुआ इधर पहुंचेगा और ये साउंड ये वाले रास्ते से भी ट्रैवल करता हुआ इधर पहुंचेगा। बराबर। अब जरा एक चीज ऐसा विजुअलाइज करो, थोड़ा सा डायग्राम आपको ऐसा दिखा नहीं रहा है बट ऐसा विजुअलाइज करो कि सबसे पहली बार ये जो यू शेप ट्यूब रखा है ना वो मूवेबल ट्यूब है। मूवेबल मतलब उसको हम इसके अंदर ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। तो पहले अरेंजमेंट कुछ इस तरह से फिट किया है कि दोनों यू शेप्ड ट्यूब का लेंथ इज सेम। लेंथ इज सेम मतलब साउंड ये रास्ते से जितना ट्रैवल करेगा ये वाला रास्ता भी उतने ही लेंथ का है, ऐसा। बराबर। तो साउंड जो रास्ता ट्रैवल कर रहा है उसको कहा जाता है पाथ। साउंड यहां से जो ट्रैवल कर रहा है उसको भी कहा जाएगा पाथ। दोनों पाथ के लेंथ इज सेम, मतलब ये रास्ते में और ये रास्ते में पाथ डिफरेंस इज 0 बिकॉज द पाथ लेंथ इज सेम। और अभी हमने मैथमेटिकली एक चीज सीखी जिसको अब हम थोड़ा सा सुन के विजुअलाइज करेंगे। अरे बच्चों, टेल मी, जब पाथ डिफरेंस 0 रहेगा तब कैसा साउंड सुनाई देगा? सो आंसर है मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। तो अभी जैसे मैं क्लिक करूंगा आपको साउंड सुनाई देने वाला है और साथ में ये जो मूवेबल यूट्यूब है उसको मैं राइट में मूव करवाना शुरू करूंगा, राइट में। ठीक है ना? अब जैसे जैसे ये ट्यूब राइट में जाएगी तब साउंड का सेंसेशन कैसे आएगा ये भी आपको फील करना है। ऑलराइट, सो रेडी फॉर इट? ऑलराइट, सो लेट अस लिसन। बराबर। सो व्हाट सेंसेशन वी आर गेटिंग इज, जब वो यू शेप्ड ट्यूब यहां पर था ये पोजीशन पे, राइट, सो द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वाज मैक्सिमम। जैसे ही ये यू शेप ट्यूब ने यहां से ऐसा मूव करना शुरू किया धीरे 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 इंटेंसिटी कम होता गया और जब ये यू शेप ट्यूब इधर पहुंचा है तो अभी तो हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, देयर इज नो साउंड। व्हाई इट इज लाइक दिस? सो बच्चों, जैसा मैंने कहा, जब ये यू शेप्ड ट्यूब ये पोजीशन पे था, ये पोजीशन पे यहां पर, तब पाथ डिफरेंस वाज 0। ऐसा मान के चलो कि लेफ्ट में और राइट में जो लेंथ है, पाथ की लेंथ वो सेम है, पर डायग्राम थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा है बट यू अज्यूम दैट। अब जैसे जैसे यू शेप ट्यूब को मैंने राइट में शिफ्ट किया, ये वाला तो फिक्स्ड है तो ये वाला पाथ लेंथ तो फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। बट ये यू शेप ट्यूब को आपने राइट में मूव किया तो ये वाला जो पाथ है उसका पाथ लेंथ धीरे धीरे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते अभी पाथ लेंथ पहुंचा रहेगा λ/2। और अगर पाथ लेंथ λ/2 रहेगा तो मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी। और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I mean इज इक्वल्स टू √I1 माइनस √I2 द होल स्क्वायर। ये रास्ते से जो साउंड जा रहा है
और ये रास्ते से जो साउंड जा रहा है वो सेम सोर्स से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये वाले साउंड की इंटेंसिटी और ये वाले साउंड की इंटेंसिटी सेम है। एंड इफ I1 इज इक्वल्स टू I2, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 0, एंड दैट इज द रीजन राइट नाउ ये पोजीशन पे हमें कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अब ये मूवेबल यूट्यूब को मैं फर्दर राइट में मूव करता हूं। अब फर्दर राइट में मूव करेंगे तो देखो क्या सेंस होता है। लिसन दिस, कैन यू सी दिस, राइट। अब वापस से रुका दिया है, धीरे 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 साउंड वापस से बढ़ता गया, और आप सेंस किए हो तो जब बढ़ते 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 एक ऐसा पोजीशन आया कि वहां पे साउंड मैक्सिमम बन गया वापस से। सो व्हाट हैपेंड, पहले पाथ डिफरेंस वाज 0, पहले मतलब समझा ना, यहां पे राइट, एंड हेंस वी लिसन्ड ए लाउड साउंड। फिर जैसे ही ये मूवेबल यूट्यूब को मूव किया तो एक इंस्टेंस पे कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा था, साउंड चला गया। क्यों चला गया? बिकॉज द पाथ डिफरेंस बिकेम λ/2। अब ये मूवेबल यूट्यूब को और मूव किया तो अब ये इंस्टेंस पे पाथ डिफरेंस हुआ रहेगा लैम्बडा। और पाथ डिफरेंस लैम्बडा का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पर एक समझाने की कोशिश करता हूं मैं। यह है फर्स्ट वेव, यह है सेकेंड वेव, ठीक है ना। अब पाथ डिफरेंस लैम्बडा का मतलब है दिस क्रेस्ट विल कोइंसाइड विद दिस क्रेस्ट, that is the meaning the path difference is lambda, and this trough will coincide with this trough like this, that is the meaning of a path difference lambda। अब ultimately हो क्या रहा है, ultimately तो crest and a crest coincide कर रहा है, ट्रफ एंड अ ट्रफ कोइंसाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देता है, जो हमें अभी सुनाई दिया जस्ट कुछ सेकेंड्स पहले। तो डेफिनेटली वी आर वेरी मच श्योर दैट अगेन लाउड साउंड इंडिकेट्स द पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्बडा। अब अगर यहां से आपको एक ट्रेंड समझ में आया हो, अगर ये मूवेबल यूट्यूब को और राइट में शिफ्ट करेंगे तो वापस से साउंड की इंटेंसिटी कम 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 होती जाएगी, एक इंस्टेंस पे कोई साउंड नहीं सुनाई देगा, तब पाथ डिफरेंस बनेगा 3/2 लैम्बडा। और आगे लेके जाएंगे, वापस से साउंड की इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए और एक पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देनी चाहिए, तब पाथ डिफरेंस बनेगा 2 लैम्बडा। सो वी आर 100% श्योर दैट, ऑलराइट। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, इज पाथ डिफरेंस शुड बी 0, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 lambda, dot 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 dot. In general, I can say that path difference is equals to n lambda, where n takes the value 0, 1, 2, 3 dot 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 dot. And a condition of destructive interference मतलब minimum intensity. In this case, it is no intensity, no sound, no intensity, 0 intensity. The path difference has to be λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 dot 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 dot. In general, the path difference is 2n plus 1 λ/2, where n takes the value 0, 1, 2, 3 dot 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 dot. These are the very very important result. बहुत जगह पर बच्चों काम में आएगा, अच्छे से याद रखना। Path difference n lambda is a constructive interference. Path difference 2n plus 1 λ/2 will give us a destructive interference. Constructive interference will give
maximum intensity of sound, and the destructive interference will give minimum intensity of sound. So that is about the quench tube experiment to understand constructive and destructive interference. All right. Now moving on to the next phenomena of sound, जिसका नाम है beats. Now the name itself is very interesting, right? हम काफ़ी जगहों पर इन जनरल डे टू डे लाइफ में कॉमन लैंग्वेज में बीट्स वर्ड सुनते हैं विच इज़ एसोसिएटेड विद द म्यूज़िक, राइट? म्यूज़िक में इस तरह के वर्ड्स हमें काफ़ी बार सुने रहेंगे, बस वर्ड सुने रहेंगे, शायद इसका मतलब ही ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है। बीट क्या होता है? तो काफ़ी लोगों को ऐसा बीट वर्ड सुन के ऐसा म्यूज़िक का कुछ ऐसा टोन माइंड में आता है, ऐसा राइट, इस तरह के कुछ साउंड आपको शायद विजुअलाइज होने लगेंगे। बीट, इज दैट एक्चुअली अ बीट? लेट्स सी, let us understand the meaning, what exactly the beats is. When the two sounds of equal frequencies are sounded together, we hear a continuous loud sound of constant intensity. मतलब अगर दो साउंड सेम फ्रीक्वेंसी के हम साइमल्टेनियसली सुनेंगे, मतलब दोनों साउंड एक ही साथ पहुंच रहे हैं, तो हमें एक कंटिन्यूअस लाउड साउंड, एक कांस्टेंट इंटेंसिटी का लाउड साउंड सुनाई देगा। आपके सुनने के लिए एक साउंड यहां पर मैंने आपके लिए लाया है, जस्ट लिसन, राइट? तो ये जो भी आपने अभी सुना वो एक्चुअली दो साउंड वेव्स को कंबाइन करके जो रिजल्ट आया है वो मैंने अभी आपको सुनवाया है। तो जो आपने सुना वो आप अगर सेंस करते हो तो कंटिन्यूअस ऐसा एक लाउड साउंड ही आ रहा है, कंटिन्यूअस, ठीक है? अब व्हाट इफ टू साउंड of nearly equal frequencies, not equal, nearly equal, लगभग same, are sounded together, then we hear a sound whose intensity is alternately becoming maximum and minimum. सर सुनो आप साउंड? जी हाँ सुनो, समझा क्या? एक मैक्सिमम इंटेंसिटी आया, फिर साउंड थोड़ा फेंट होता गया, फिर एकदम कम इंटेंसिटी का साउंड बन गया, फिर अचानक वापस से मैक्सिमम इंटेंसिटी का बना, फिर वापस से कम इंटेंसिटी का बन गया, राइट? सो वी आर गेटिंग ऑल्टरनेटली बिकमिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम, विच इज कॉल्ड एज अ बीट। इसको कहा जाता है बीट। तो जब साउंड लाउड बनता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का बनता है, उसको कहा जाता है वैक्स और वैक्सिंग। और जब साउंड मिनिमम इंटेंसिटी का बनता है, फेंट बनता है, तो उसको कहा जाता है वेन। सो ऑल्टरनेटली वैक्सिंग एंड वेनिंग। वैक्सिंग मतलब हाई इंटेंसिटी साउंड, वेनिंग मतलब लो इंटेंसिटी साउंड। दिस इज कॉल्ड एज बीट, इसको कहता है बीट। अब ऑब्वियस से क्वेश्चंस आएंगे काफी लोगों, सर ये बीट कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैसे ऐसा मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी बन गया? इसी के लिए आई एम गोइंग टू शो यू फर्स्ट द एनालिटिकली फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। एनालिटिकली मतलब मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली पहले बीट्स बनाते हैं, मैथमेटिकली चीजें समझते हैं, और फिर आई अश्योर यू अबाउट द बेस्ट पॉसिबल विजुअलाइजेशन। देख करके या सुन करके
बेस्ट तरीके से हम फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे. सो बट बिफोर वी लुक दैट, let us first understand mathematically production of beats. So consider the two waves of a same amplitude A and having the frequencies n1 and n2 traveling along the same line. Let y1 and y2 be the displacement at a point due to two waves. मतलब basically दो waves है, बराबर, दो waves जिसके amplitude same है, जिसकी फ्रीक्वेंसीज n1 और n2 है, मतलब फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है. दे आर ट्रैवलिंग अलोंग द सेम लाइन, ठीक है, एंड दे आर अराइविंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली. तो पहले वेव की वजह से जो मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको y1 सिंबल दिया है, और दूसरे वेव की वजह से जो मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होएगा उसको मैंने y2 सिंबल दिया है. सो y1 is equals to a sine 2 pi n1t. So this is a displacement due to first wave. y2 is equals to a sine 2 pi n2t. So this is a displacement due to the second wave. Now as per the superposition principle, when the two waves are arriving at a point simultaneously, then displacement of the particle of the medium is resultant of the displacement due to the first wave and the displacement due to the second wave. So resultant displacement बनेगा y is equals to y1 plus y2 as per the superposition principle, right? y1 की जगह पर let me substitute the equation, y2 की जगह पर लेट मी सब्सटीट्यूट द इक्वेशन. अब इसमें से a कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा y इज इक्वल्स टू a इन द ब्रैकेट साइन 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t, बराबर. अब ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखा है उसको मैं एज इट इज यहाँ पर कॉपी पेस्ट. अच्छा, बाय द वे इसको याद रख लो बच्चों, देखो यहाँ पे, राइट. नाउ सी दिस इज साइन c प्लस साइन डी, बराबर. अब मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला बनता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2. सो लेट मी अप्लाई द फॉर्मूला हियर. a बाहर था, 2 साइन 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t बाई 2 कॉस 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t बाई 2, बराबर. अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर 2 पाई t 2 पाई t कॉमन ले लेंगे, यहां पर भी 2 पाई t कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 2a साइन 2 पाई कॉमन इन द ब्रैकेट n1 प्लस n2 बाई 2 t भी कॉमन, कॉस 2 पाई कॉमन n1 माइनस n2 बाई 2 t भी कॉमन, समझा, बराबर. अब अपना जो इंडिविजुअल वेव थे y1 और y2 के वेव, दे वर द फंक्शन ऑफ साइन, राइट. दोनों के दोनों साइन के फंक्शन थे. तो इसमें भी मैं क्या करता हूं, ये जो साइन वाला टर्म है, साइन वाला टर्म, उसको मैं थोड़ा राइट में शिफ्ट करता हूं और कॉस वाला टर्म है इसको यहां पर ले लेता हूं. तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 2a कॉस 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू t साइन 2 पाई n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू t. अब इसको थोड़ा इजी बना देता हूं, तो इसको मैं लिख देता हूं y इज इक्वल्स टू, बराबर, ये सेम इक्वेशन यहां पर कॉपी पेस्ट हुई है, कोई चेंज नहीं है, बराबर. अब इजी बनाता हूं. सो आई एम राइटिंग y इज इक्वल्स टू r sin 2 pi and t. This became the easy form of equation. बच्चों, टेल मी व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ इंडिविजुअल वेव. इंडिविजुअल वेव का इक्वेशन क्या था? तो फर्स्ट वेव का इक्वेशन था y1 इज इक्वल्स टू a sin 2 pi n1t.
सेकेंड वेव का इक्वेशन था a sin 2 पाई n2t, बराबर। अब रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन देखो क्या बन रहा है। रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन बन रहा है y इज इक्वल्स टू r sin 2 पाई n t. So what is r? So r is the amplitude of resultant wave. What is n? N is a frequency of resultant wave. अब काफ़ी लोग को ऐसा लगेगा सर वेव का हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाया था सर वो तो ऐसा था y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्बडा, सही बात है। हाँ बिल्कुल यही इक्वेशन है, बराबर, विच इज़ अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x एंड t, बराबर। अब what we are doing is we are understanding the superposition as a function of time, मतलब समय के साथ में ये सुपरपोजिशन कैसा होएगा। तो ये जो x है x, उसको समझने के लिए अपने बीट्स में एनालिसिस के लिए वो x की जगह पर 0 सब्सटीट्यूट कर दिए। 0 मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हम बीट फॉर्मेशन समझ रहे हैं, वो पर्टिकुलर पोजीशन पे टाइम के साथ में किस तरह का बीट सुनाई देगा ये समझ रहा है। तो x को 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई 1/t को लिखा है n t, ऐसा, बराबर। दैट इज द रीजन ये इक्वेशन को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई n t. सो वी आर अंडरस्टैंडिंग द बीट at a particular position and the position is x is equals to 0, barabar, and that is the reason we started with that particular equation. All right, now so this is the equation of resultant wave. What is r? r is a resultant amplitude. किसकी जगह पर r सब्स्टिट्यूट किया है? ये पूरे ब्रैकेट की जगह पर r सब्स्टिट्यूट किया है। so r is equals to, अच्छा by the way, what is this n? n is a frequency of resultant wave, और किसकी जगह पर ये n सब्स्टिट्यूट किया है? तो n1 प्लस n2 बाई 2 की जगह पर n सब्स्टिट्यूट किया है। What is n1? Frequency of first wave. What is n2? Frequency of second wave. What is n? Frequency of resultant wave. And r is equals to 2a cos 2 pi n1 minus n2 by 2 into t. What is a? A is the amplitude of individual wave. What is r? R is the amplitude of resultant wave. So if you notice, this r is varying as a function of t. r के इक्वेशन में t वाला टर्म आ रहा है, मतलब जैसे जैसे t चेंज होएगा वैसे वैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चेंज होएगा, एंड जैसे जैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चेंज होएगा वैसे वैसे इंटेंसिटी भी चेंज होएगी, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस इन टाइम। क्या बोलते बच्चों इसको? इंटरफेरेंस इन टाइम। नाउ इंटरफेरेंस इन टाइम का मतलब है विथ टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव चेंज होते जाना, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरफेरेंस इन टाइम। अब ये जो इक्वेशन बनाया है उसको एज इट इज यहां पर मैं कॉपी कर लेता हूं। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन कॉपी किया है। नाउ आई वांट ए कंडीशन ऑफ वैक्सिंग। वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होएगा? जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होएगा। तो हमें चाहिए कंडीशन
of maximum amplitude. So this is the equation, right? तो ये इक्वेशन में जो वेरिएबल टर्म आपको दिख रहा है, वेरिएबल टर्म, कॉस वाला टर्म वेरिएबल टर्म है ना, उसमें टी है. वेरिएबल टर्म जब मैक्सिमम रहेगा तब आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनेगा. कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है ±1, right? +1 is maximum in the positive side, -1 is the maximum in negative side. So if I substitute cos की जगह पे +-1, r की मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी ±2a, बराबर. नाउ when cos का वैल्यू becomes +-1, cos का वैल्यू becomes +1 when the angle is शून्य. Cos का वैल्यू becomes -1 when the angle is pi. Sir, what if the angle is 2 pi? Definitely it will become again +1. What if the angle is 3 pi? Definitely again the value becomes -1. So in general I can say that angle, which is nothing but 2 pi n1 minus n2 by 2 into t. By the way, 2 is getting cancelled, right? And hence we are getting pi n1 minus n2 t must be equal to 0, pi, 2 pi, 3 pi, dot. In general, I can write p pi, where p takes the value 0, 1, 2, 3. हम इसको n pi भी लिख सकते थे, बट यहाँ पर n जो है वो ऑलरेडी हम एक दूसरी चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर चुके हैं. अगर आपको याद हो, प्रीवियस स्लाइड में ही देखा, n is the frequency of resultant wave and hence we have used the word p pi here, right? Okay, अब t को यहीं पे रहने दीजिए, बाकी सबको नीचे लेके जाइए. By the way, pi and a pi will be getting cancelled, so I'll be getting t is equals to p upon n1 minus n2. p की जगह पे 0, 1, 2, 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको टाइम इंस्टेंसेस मिल जाएंगे जब वैक्सिंग होएगा. सो t इज इक्वल्स टू 0, 1 upon n1 minus n2, 2 upon n1 minus n2, 3 upon n1 minus n2. These are the time instances where the waxing occurs. Waxing मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब ये टाइम इंस्टेंसेस पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा. अब अगर ये दो एडजेसेंट टाइम इंटरवल को अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूं, इसमें से ये सबट्रैक्ट करता हूं या इसमें से ये सबट्रैक्ट करता हूं, तो सबट्रैक्ट करो. 2 upon n1 minus n2 minus 1 upon n1 minus n2 will give us 1 upon n1 minus n2. 3 upon n1 minus n2 minus 2 upon n1 minus n2 will again give us 1 upon n1 minus n2. That means the time interval between two consecutive maxima is 1 upon n1 minus n2. Sorry, there is a mistake here, right? So this will be 1 upon n1 minus n2. तो एक रेगुलर इंटरवल पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी के साउंड सुनाई दे रहे हैं. ये ज़रा टाइम इंस्टेंसेस को बराबर से माइंड में बिठा लो. 1 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन ऐसा है, ठीक है ना. अब आर का सेम इक्वेशन, नो चेंज. नाउ वी आर लुकिंग एट अ केस ऑफ वेनिंग. वेनिंग म्हणजे मिनिमम इंटेंसिटी. आर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आंसर है 0. कब आर की वैल्यू 0 बनेगी? जब वेरिएबल टर्म की वैल्यू 0 बनेगी. ये कॉस वाला टर्म कब 0 बनेगा? जब एंगल होएगा पाई बाई 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, dot. This 2 will be getting cancelled, so I'll be getting pi n1 minus n2. अच्छा, अभी 2 अगले स्टेप में कैंसिल करता हूँ. शुड बी इक्वल टू,
ये π/2, 3π/2, 5π/2 को इन जनरल लिख सकते हैं 2p + 1 π/2, राइट, वेर p टेक्स द वैल्यू 0, 1, 2, 3. अब ये 2 कैंसिल करवा दो यहां पर, लेफ्ट एंड राइट से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, लेफ्ट एंड राइट से ये दिस वन पाई भी कैंसिल, राइट. सो आई विल बी गेटिंग t इज इक्वल्स टू 2p + 1/2 n1 minus n2, right. And now if I substitute p की जगह पे 0, 1, 2, 3, so I'll be getting t is equals to 1/2 n1 minus n2, 3/2 n1 minus n2, 5/2 n1 minus n2 ... कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंस्टेंसेस को सब्ट्रैक्ट करिए. लेट्स सब्ट्रैक्ट 3/2 n1 minus n2 minus 1/2 n1 minus n2. So I'll be getting 3 minus 1, 2/2 n1 minus n2. 2 cancel. So again it is a 1/n1 minus n2. अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 minus 3, आंसर इज 2. ऊपर नीचे 2 कट गया तो 1/n1 minus n2. So the time interval between two consecutive minima is 1/n1 minus n2. अब बच्चों जरा टाइम इंस्टेंसेस को जरा समझो यहां पे. लेट्स से दिस इज माय टाइम एक्सिस. तो पहले t इज इक्वल्स टू 0 पे वी वर हैविंग मैक्सिमा. Then we got a time instance 1/2 n1 minus n2. यहां पर we got minima. Then we got a time instance 1/n1 minus n2. समझ में आ रहा है ये? 1/2 मतलब 0.5. This is 1. यहां पर वापस से मैक्सिमा हाई इंटेंसिटी. Then we got 3/2 n1 minus n2. वापस से मिनिमा. Then the time instance came 2/n1 minus n2, right. Again high intensity maxima. समझ में आ रही है बात? ये है 0, ये है 0.5, this is a 0.5, right. This is a 1, this is 1.5, this is a 2. Are you getting it? So these are the time instances जहां पर हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी ऐसा साउंड सुनाई देगा. हाई इंटेंसिटी को कहते हैं वैक्सिंग, लो इंटेंसिटी को कहते हैं वेनिंग. सो वैक्सिंग एंड वेनिंग आर ऑल्टरनेट. Right. So we will hear a sound of alternate high intensity and low intensity which is called as a beat. क्या बोलते बेटा इसको? बीट कहते हैं इसको. So कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद द बीट्स. The time interval between two consecutive maxima or minima is called as a beat time period. And the beat time period का फॉर्मूला बन गया 1/n1 minus n2. What is n1? Frequency of first wave. What is n2? Frequency of second wave. So 1/n1 minus n2 will give us the beat time period. Reciprocal of beat time period is called as a beat frequency, जिसकी दूसरी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ वैक्सिंग और वेनिंग per unit time is called as a beat frequency. N is a symbol representing a beat frequency which is equals to 1/t, which is equals to n1 minus n2. What is n1? It is a frequency of first wave. What is n2? It is a frequency of second wave. What is n? It is beat frequency. Beat frequency का मतलब है पर यूनिट टाइम
कितनी बार वैक्सिंग और कितनी बार वेनिंग सुनाई देने वाला है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्सिंग? वैक्सिंग मतलब हाई इंटेंसिटी साउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेनिंग? वेनिंग मतलब लो इंटेंसिटी साउंड। तो अगर एक सेकेंड में एक बार हाई इंटेंसिटी और एक बार लो इंटेंसिटी साउंड सुनाई दिया तो उसको हम कहेंगे एक बीट, और बीट फ्रीक्वेंसी को कहा जाएगा 1 बीट पर सेकेंड। और अगर एक सेकेंड में 2 बार हाई इंटेंसिटी और 2 बार लो इंटेंसिटी साउंड सुनाई दिया तो उसको कहा जाएगा 2 बीट, और बीट फ्रीक्वेंसी को कहा जाएगा 2 बीट्स पर सेकेंड, राइट। ऐसा एक सेकेंड में 5 बार हाई इंटेंसिटी 5 बार लो इंटेंसिटी तो उसको कहा जाएगा 5 बीट्स पर सेकेंड। दैट इज द मीनिंग ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी, बराबर। अब बच्चों बीट्स में टोटल 4 तरह की फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। एक N1, दूसरा N2। इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव, इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड वेव। फिर दूसरा आया था N1 प्लस N2 बाई 2, इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव। और अब तीसरा आया है N1 माइनस N2, सॉरी चौथा आया है N1 माइनस N2 which is called as beat frequency. So don't get confused with these terms. This is the frequency of first wave, this is the frequency of second wave, this is the frequency of resultant wave, and this is called as beat frequency. इसको हम हमेशा मॉड में लिखा करेंगे बिकॉज वी डोंट नो वेदर N1 इज ग्रेटर और N2 इज ग्रेटर। सो इसीलिए इसको लिखेंगे मॉड ऑफ N1 माइनस N2। और अगर हमें पता चल गया भाई N1 बड़ा है तो सिर्फ N1 माइनस N2 लिख सकते हैं, ठीक है। सो 4 तरह की फ्रीक्वेंसी के टर्म्स है, बीट्स में कंफ्यूज मत होना। ऑलराइट, एंड नाउ द टाइम इंटरवल between waxing and next waning is a T/2 which is nothing but 1/2 N1 minus N2। यहाँ से T/2 मिलेगा 1/2 N1 minus N2। That is called as the time interval between waxing and next waning. All right. So now understanding beats analytically, mathematically. Now it is a time for you to understand 3 necessary conditions for beat production। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो बीट प्रोड्यूस होंगे। पहली कंडीशन भाई, देयर हैज टू बी 2 वेव्स ऑफ इक्वल और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड। क्यों ऐसा? अगर 2 वेव इक्वल या नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड के होंगे तो जब मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा, मिनिमम इंटेंसिटी अगर इक्वल रहेंगे ना, इक्वल, तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 बन जाएगी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो साउंड रहेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड, इट विल बी द 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव। तो इसकी वजह से क्या होएगा ना, इसकी वजह से आपको प्रॉपर साउंड में कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट इन द सेंस, जब हाई इंटेंसिटी का साउंड आएगा तो आपको समझ में आएगा हाँ भाई दिस इज अ हाई इंटेंसिटी। जब लो इंटेंसिटी का साउंड आएगा, मतलब कोई साउंड ही नहीं आएगा, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा ओके भाई दिस इज अ वैक्सिंग, अब नो साउंड, दैट इज अ वेनिंग। अगर ये दोनों नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड के हुए, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड के, तो क्या होएगा, तो जब लो इंटेंसिटी का साउंड आएगा, एक सेकेंड, हाँ, जब लो इंटेंसिटी का साउंड आएगा तो आपको इंटेंसिटी मिलेगी √I1 माइनस √I2 द होल स्क्वायर। मतलब कुछ तो वैल्यू आएगी, है ना, बट वो बहुत ही छोटी रहेगी। और जब मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड आएगा तो बनेगा √I1 प्लस √I2 द होल स्क्वायर। So you'll be getting a loud sound and a faint sound, a loud sound and a faint sound, right? So अगर equal intensity रहा तो contrast proper मिलेगा,
नियरली इक्वल इंटेंसिटी रहा तो भी हमें बीट सेंस होएंगे, इसीलिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है टू गेट अ प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट इन बीट्स। दूसरा, द वेव शुड बी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों वेव अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो ही तो वो समय के साथ इंटरफियर करके बीट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो दे मस्ट बी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो हमें कंटिन्यूअस बीट्स सुनाई देंगे, कंटिन्यूअस हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी ऐसा सुनाई देगा। द थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव्स शुड बी नियरली इक्वल। मतलब जो N1 एंड N2 है वो नियरली इक्वल होनी चाहिए। उनके बीच का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस मस्ट बी लेस देन 10 हर्ट्ज एंड दिस विल जनरेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क इन योर ब्रेन। वाई सर, क्यों ऐसा सर? डिफरेंस 10 हर्ट्ज से कम ही क्यों होना चाहिए? क्या ज़्यादा होएगा तो बीट प्रोड्यूस नहीं होंगे क्या? ऑलराइट, एज आई प्रॉमिस यू, physics is all about visualization, and the best way to visualize is by watching it, observing it or listening it. Since we are looking at a waves, सुन के समझना बड़ा आसान है। अगर आपको चीज़ें सुनाई देगी तो उसको विजुअलाइज करना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। सो लेट अस लिसन। सबसे पहले दो यहां पर मैंने इसको बच्चों कहते हैं ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक के ये जो प्रोंग्स है ना, ये प्रोंग्स जब हम ट्यूनिंग फॉक को ऐसे कोई सरफेस के साथ में स्ट्राइक करते हैं तो ये प्रोंग्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं। दिख रहा है वाइब्रेशन? और जब ये प्रोंग्स वाइब्रेट करते हैं तब ये प्रोंग्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसको आप लेबोरेटरी में फिजिकली एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे जब कुछ कॉलेज वगैरह शुरू होएगी तब, राइट? अभी हम यहीं पे अपना एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं। तो ये जो पहला ट्यूनिंग फॉक है उसके प्रोंग्स 401 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉक, 401 हर्ट्ज। और जो दूसरा ट्यूनिंग फॉक है इट इज प्रोड्यूसिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ट्ज। ठीक है? सो दीज आर द टू साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय टू ट्यूनिंग फॉक। अब ये दोनों इंटरफियर करके बीट प्रोड्यूस करेंगे। बीट फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो अभी हमने देखा भाई बीट फ्रीक्वेंसी होता है N1 माइनस N2। दिस इज अ बीट फ्रीक्वेंसी। सो 401 माइनस 400 विल गिव अस 1 बीट पर सेकेंड। What is the meaning of 1 beat per second? The meaning of 1 beat per second is 1 सेकेंड में आपको एक वैक्सिंग और एक वेनिंग सुनाई देगा। 1 सेकेंड में आपको एक बार हाई इंटेंसिटी और एक बार लो इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा, which is called as a 1 beat per second. Let us listen. समझा? Right? अब let me change the tuning fork. 403 और 400। पहला ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी है 403 हर्ट्ज, दूसरे ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज। क्या बीट प्रोड्यूस होंगे क्या? हाँ, डेफिनेटली। क्या रहेगा बीट फ्रीक्वेंसी? तो आंसर है 403 माइनस 400 विच इज नथिंग बट 3 बीट्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 बीट्स बराबर N1 माइनस N2 इज अ फॉर्मूला ऑफ अ बीट फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में 3 बीट्स मतलब 3 बार वैक्सिंग, 3 बार वेनिंग, मतलब 3 बार हाई इंटेंसिटी साउंड और 3 बार लो इंटेंसिटी साउंड। सर सुनाओ जरा। हाँ बिल्कुल सुनो। आया मजा? अब what if the two tuning forks are having 410 हर्ट्ज एंड 400 हर्ट्ज? क्या बीट प्रोड्यूस होंगे क्या? हाँ डेफिनेटली सर होंगे। क्यों नहीं होंगे?
ओके, व्हाट विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी? सर बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है n1 माइनस n2. 410 माइनस 400 विल गिव अस 10 बीट्स पर सेकेंड. एक सेकेंड में 10 बीट्स. 10 बार हाई इंटेंसिटी का साउंड, 10 बार लो इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देना चाहिए. रेडी? यस सर, सुनाओ जरा. यस, मजा आया सर. समझ में भी आया कि ये बीट था. एक हाई इंटेंसिटी और फिर फेंट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर फेंट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर फेंट हुआ. अब what if we change the tuning fork and we take 415 hertz and 400 hertz? क्या ये बीट प्रोड्यूस करेंगे क्या? जी हां, बिल्कुल बीट्स प्रोड्यूस करेंगे. बीट फ्रीक्वेंसी होगी 15 बीट्स पर सेकेंड, और जब 15 बीट्स पर सेकेंड हम सुनेंगे तो पागल हो जाएंगे. यस, दिस आर द 15 बीट्स पर सेकेंड. बट सर इसमें हमको समझ में नहीं आया कि ये बीट था क्या. हमको तो ऐसा लगा ये तो कंटिन्यूअस लाउड साउंड ही आया जा रहा है. कभी साउंड नीचे ही नहीं गया, फेंट ही नहीं हुआ, लो इंटेंसिटी ही नहीं आया. यस, और इसका रीजन ये है, हमारे ब्रेन में जब साउंड पहुंचता है तो उसका सेंसेशन 0.1 सेकेंड तक रहता है. कितने सेकेंड तक? 0.1 सेकेंड तक. तो 0.1 सेकेंड के बाद में अगर कोई साउंड आया तो हमारा ब्रेन वो दो साउंड को डिस्टिंक्टली सेंस कर सकता है. बट अगर 0.1 सेकेंड से पहले ही अगर कोई दूसरा साउंड आ गया तो पहले साउंड का सेंसेशन जब तक चलता रहेगा तब तक दूसरा साउंड भी आ जाएगा. तो अपने ब्रेन को वो दो साउंड डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, ऐसा सेंस नहीं होएगा. अपने ब्रेन को सेंस होएगा कि हमें कंटिन्यूअस एक साउंड आ रहा है, ऐसा सेंस होएगा. और इसीलिए बीट को डिस्टिंक्टली सुनने के लिए दो मैक्सिमम इंटेंसिटी के बीच टाइम इंटरवल होना चाहिए 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा. मिनिमम 0.1 सेकेंड का इंटरवल होना चाहिए. उससे ज्यादा रहेगा तो बेस्ट है, तो हमें एकदम डिस्टिंक्टली बीट सुनाई देंगे. इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/0.1 का रेसिप्रोकल होता है 10. और इसीलिए द थर्ड कंडीशन ऑफ बीट प्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बीट फ्रीक्वेंसी 10 मतलब n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 10, एंड n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू 10 का मतलब है दो वेव के फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस 10 हर्ट्ज होना चाहिए. टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा. तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आंसर आएगा 10 या उससे कम. बराबर. सो बीट्स को डिस्टिंक्टली सुनने के लिए दो साउंड की फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस शुड बी 10 हर्ट्ज और लेस. If the difference is more than 10 hertz, then we'll hear a continuous loud sound. We will not be able to hear beats. Right? And that is, I would say,
एक नंबर विजुअलाइजेशन बाय लिसनिंग बीट्स। सो बच्चों, दोबारा मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में विद अ फ्यू ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स। तब तक के लिए गुड बाय।